So Disha, आपसे बात अगर है तो let's ask. You are associated with one of the website also. I think you are working with one of the websites. So Yes. So basically, let's talk about something about that. yeah. So my sister has a company, and I help her doing her own work. Like I'm basically not a partner there, but yes, you can say because it's my sister's firm. I help her Mhm. doing her work. So basically, it is an Okay. education platform which provides workshops and webinars and courses related to say data science and Python Oh, and R. These okay. are all basically related to science, but it is no today what I realize is commerce, science, arts, these art streams when we are in 11th, 12th, or maybe when we are doing Mm-hmm. our studies. But when we enter into the world of corporate, you need to learn things as per the demand of the corporate or the experience that is needed from you, that is expected from you in the company that you are working in. Like when I was in Accenture, I'm a cost accountant, right? I'm not supposed to know coding, but वहां पर रहते हुए Yeah. मुझे समझ आया कि अगर मैं सीख लूंगी तो मैं टेक्नो फंक्शनल हो जाऊंगी. मतलब फंक्शनल तो आई एम ऑलरेडी देयर, अगर मैं टेक्निकली भी सीख जाऊंगी तो आई विल बी अ टेक्नो फंक्शनल एक्सपर्ट. So I'm like the firm, the company, the name is Progressive Alas. I am not full-fledgedly working there, but I help her grow her business because I am not from the Okay. science field, but I help her grow her business. Or that can be done if you are passionate about starting your own business, or you want to be an entrepreneur. Even that is a possibility that you can explore. कुछ भी देखो Okay. क्या है कि धीरू भाई अंबानी को नहीं आता था पेट्रोल निकालना या रिलायंस बनाना. वो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट था ऑन अ पेट्रोल पंप फील्ड, बट हिज हाउ वाज नॉट क्लियर, बट व्हाई वाज क्लियर कि कर लो दुनिया मुट्ठी में. यस, उसने हाउ फिगर आउट कर लिया. हम बैठे हैं ना इंजीनियर सीएमए इस काम करने के लिए. अगर आपका वाई क्लियर है कि आप क्यों करना चाहते हो, तो आप ढूंढ लेते हो कि आप कैसे कर पाओगे वो काम जो आप करना चाहते हो. This is what I'll Mm-hmm. I'll I'll say. So one can associate it along with this job with the other things also. I think ये बहुत important है कि अगर आप अपने job के साथ हो तो you must get associated with yourself with some other stuffs also, हाँ, वो so that कुछ भी you हो can सकता है वो able to पैसे. It can be कुछ भी. monetary or non-monetary. Yes, it can give Yes, you it any can kind of benefit, but अपने आप पे काम करते रहना चाहिए. This is what I'll say. Mm-hmm. Yeah, Like you exactly. mentioned कि अगर चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा. जैसे पानी भी खड़ा रहता है तो उसमें काई जम जाती है अगर वो नहीं चल रहा है, तो वैसे हमारी जिंदगी भी हाँ, वैसी ही है. exactly. You If might. you want, Sorry. Yes, please that is what start I'm with saying. it. If you want to change, you have to change yourself. If you want change Yes. from of your life, if it is stagnant, अगर वो रुक गया आपका कुछ भी हो, job हो, study हो, if anything it's there which is stuck somewhere, so you need some changes. If nothing going to change, then your life also not going to change. Yes. So with this thought, let's move on to Manisha. Let's ask few more questions regarding practice industry. What we have. Yes. So Manisha, what do you think? Institute play a very important role to the practice industry because institute जो है वो बहुत सारे authorities और power देती है जो practicing field में जो as a practitioner as a CA में काम करते हैं authorities वहां से आती हैं. So what do you think institute should take some necessary step to enhance this part of the career of being CMA? What do you think? According to me, yes, institute should, because what happen, अगर आप अभी भी सीएमए बच्चों को देखेंगे, मतलब जो सीएमए कर रहे हैं, they don't even know कि आगे उनके पास opportunities क्या available है in practice. तो someone asked me कि as a CMA, can we do bookkeeping? Can we do finalize the accounts? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में जो सीएमए प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट यही सब कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि सीएमए के पास क्या क्या ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. इवन आई वुड से कि गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि जीएसटी पूरा का पूरा सीएमए के लिए करा है. मतलब सीए भी है ऑल दोस्त, बट सीएमए के लिए भी है. इवन ओनली 4,000 आर देयर, 4,000 सीएमए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उनके लिए अगर ये देखा जाए तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है कि सिर्फ इतने से लोगों के लिए अगर आप पूरा जीएसटी उन्हें दे रहे हैं.
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे गवर्नमेंट को भी लगता है कि सीएमए का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को भी इतना स्टेप लेने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को अवेयर करे कि उनके पास क्या-क्या ऐसी चीज़ है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क दे कैन डू। तो अभी बहुत सारी, जैसे मैं कुछ-कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कॉस्ट ऑडिट, ये तो सबको पता होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट कंप्लायंसेस, लाइकवाइज जीएसटी ऑडिट, जीएसटी रिकॉर्ड्स वगैरह, आई मीन जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी कंसल्टेंसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि आज की डेट में जो इंटरनल ऑडिट है, वो सीएमए बहुत अच्छा कर रहा है। ये मैंने खुद देखा है, इसलिए Okay. मैं कह रही हूँ, क्योंकि इंटरनली हम जो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट पूरा कंपनी में इंटरनली वर्क करते हैं, उनकी कॉस्टिंग देखते हैं, उनका जो भी कॉस्ट कटिंग्स वगैरह, कॉस्ट सेविंग्स वगैरह, ये सब देखते हैं। तो इंटरनल ऑडिट में सीएमए का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि हम सिर्फ क्लेरिकल एरर्स पे डिपेंड नहीं होते कि ये क्लेरिकल एरर है तो हमें इंटरनल ऑडिट में हम सिर्फ ये पकड़ लेंगे। बट बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कंपनी को जो बहुत ज्यादा आगे चल के ग्रो कर सकती है, अपना रेवेन्यू सुधार सकती है। तो बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट को स्टेप लेना चाहिए कि वो आगे जाके ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करे, ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स करे आगे जाके, कि बच्चों को और आगे जाके जो भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो आगे जाके उन्हें पता चले कि क्या क्या चीजें हैं उनके पास। आई थिंक ओरिएंटेशन के ड्यूरेशन में हमें बहुत कुछ बताया जाता है कि प्रैक्टिसिंग में क्या क्या है नहीं है। आई थिंक ये चीज ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट पीरियड ऑफ टाइम हमें बताना चाहिए, ताकि वहां से इंटरेस्ट एरिया ग्रो हो व्हाइल वी आर इन स्टूडेंट पीरियड ओनली, कि True. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, रादर देन क्योंकि जब हम लोग पास आउट हो जाते हैं ना, तब तक ऑलरेडी एक माइंडसेट तैयार हो जाता है, जॉब करना है या पर्टिकुलर उस चीज में जाना है। लेकिन उस वक्त बट अगर पहले अगर उस चीज को बताया जाए कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन प्रैक्टिस, तो आई थिंक माइंडसेट अपना वैसे डेवलप किया जा सकता है धीरे धीरे, कि स्टूडेंट्स पहले से ही थोड़ा माइंड प्रिपेयर करें कि वो प्रैक्टिसिंग में आए। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। एज इफ आई अर्लियर सेड कि बच्चों का पहले ही माइंडसेट होना चाहिए, वो तभी आएगा जब इंस्टीट्यूट को स्टेप लेगा। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा है अनडाउटेडली, बट एक कुछ चीजें कि मुझे भी एड, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग सीएमए, मुझे भी इतना नहीं पता था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। वो तो ये हुआ कि सीएमए मतलब इंटर्नशिप के टाइम आई गॉट टू नो फ्यू, और अभी भी ऐसा हो रहा है कि सीएमए जब मैं प्रैक्टिस में आ गई तब जाके मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये भी कर सकती हूँ। तो ये ऐसी चीजें हैं कि तो अभी भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लोगों को नहीं पता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक स्टूडेंट टाइम पीरियड में अगर पता चले तो किसी भी आई थिंक इवन टीचिंग, इवन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट्स एज वेल, इन टीचिंग एज वेल, ड्यूरिंग द स्टूडेंट फेज अगर ये पता चलने लगे, तो स्टूडेंट्स को जो जॉब मिलने के 6 महीने बाद हम सोचने बैठते हैं यार कर क्या रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं जो भी काम हम लोग करते हैं, वो पहले से ही अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं कि हाँ टीचिंग में ये अपॉर्चुनिटीज है, कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटीज है, प्रैक्टिस में ये अपॉर्चुनिटीज है। तो वाइल द इन स्टूडेंट फेज हम लोग उस चीज को एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि हम लोग किधर मूव ऑन करें। ट्रू बिकॉज मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे दिशा ने भी कहा, सलोनी ने भी कहा कि पहले मैंने क्या किया था बिफोर registration, before getting registered in CMA course, उससे पहले I was doing working in HDFC as a credit card, फोन बैंकिंग समथिंग। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपको ना ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट करता है जो आपका पैशन है। तो विद इन 8 months आई क्विट दैट जॉब, देन आई केम इनटू CA फर्म, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि CMA भी कुछ होता है, तो मैं CMA रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद CMA फर्म में काम करा। अब धीरे धीरे करके तो यही है कि अभी यहाँ पे आजकल लोगों के उसमें भी थोड़ा बहुत CMA का पता चला है, बट इतना ज्यादा नहीं पता चला। सब ऐसी वो बोल देते हैं कि भाई पुलिस और रॉ का उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, बट सिर्फ इस एग्जाम्पल से नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है यहाँ पर। So these are thingsOkay. Viewers, if you want to ask any question, you can comment on the Facebook on this watch party, and you can ask any of us any question if you want. You can just comment your questions and we'll answer your questions. Okay, Manisha, one more thing. Practicing it's very difficult. I think you might have faced some challenges over getting into this. So, do you think you have faced any challenges
इस चीज को चूज करने में, यहाँ पे आने के लिए? व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? I would say many challenges I have. Even अभी भी आई एम फेसिंग दैट. सो सबसे पहला तो मैं ये ओके। बोलूँगी मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि एज इफ अर्लियर ऑल्सो मैंने बोला था कि आप नेगेटिव या जीरो से ही स्टार्ट करते हो प्रैक्टिस में. तो साथ साथ में क्या होता है, आपका फैमिली प्रेशर भी आता है कि आपको एक टाइम पे ये बोलने लग जाएंगे जब आप कुछ नहीं कमा रहे, तो पागल तो नहीं बना रहा हमें कि आपके फ्रेंड्स इतने अच्छा अर्न कर रहे हैं और अभी तुम कुछ नहीं अर्न कर रहे. तो ये एक मेन चीज होती है कि फाइनेंशियल इशू आता है. धीरे धीरे जाके क्या होता है, सेकेंडली फिर आपका नेटवर्किंग इशू आता है. अगर आप प्रैक्टिस में चलो आ भी गए, ठीक है, तो प्रैक्टिस में आने के बाद आपका आता है नेटवर्क इशू, क्योंकि आपके पास काम नहीं होता, आपके पास क्लाइंट्स नहीं होते, तो ये नेटवर्क इशू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का ही सबसे बड़ा रोल है. उसके बाद नेटवर्किंग के बाद आई वुड से एक टीम. अगर आप प्रैक्टिस में हो और आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. इवेंचुअली मैं थैंक्स बोलूंगी गॉड को कि मेरे पास काफी अच्छी टीम है. तो ये एक मेन रीजन होता है कि आपका ना काम काफी इजी हो जाता है अगर आपके पास अच्छी टीम है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें डेलीगेट कर जाती है आगे, ठीक है. तो और साथ में अगर आपका मेरा मेन जो रीजन है वो प्रैक्टिस में टिके रहने का, वो मेरी टीम है. आई वुड से द लास्ट वन आई वुड से पेशेंस. आपका पेशेंस लेवल हर दिन टेस्ट होता है कि आप प्रैक्टिस में कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें तो आ जाते हो, बट मेन क्वेश्चन अराइजेस है कि आप कितना टाइम रुक सकते हो, क्योंकि यही सेम चीजें हैं कि आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कब तक खाली बैठ सकता है कोई. तो बट हाँ, वंस यू स्टार्टेड गेटिंग द वर्क, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कब वन प्रोजेक्ट से 1000 पे आ जाओगे. तो these are the main 4 challenges or difficulties you can say I'm facing.